Hello student, today we are going to discuss some examples that are related to our completion of theory. Okay, so here we are discussing 2.16 number example. Before example some examples are left, and that example also cover whenever our topics are clear. Okay, so what is the question 2.6? The unit of the length of convenient on an atomic scale is known as the Armstrong, and it is denoted by the 1 Armstrong equal to 10 to minus 10 meter. Means whenever we are dealing the measurement of the atomic level, at the time there is a convenient unit to representing the all atomic dimensions is that Armstrong, and we are know that what is the value of 1 Armstrong into the meter, that is a 10 to minus 10 meter. Okay, so if the size of the hydrogen atom is considered as the 0.5 Armstrong, then what is the total atomic volume in meter cube of the mole of the hydrogen atom? If हाइड्रोजन की हमको यहाँ पे क्या दी गई है भाई, रेडियस दी गई, साइज यानी कि उसकी रेडियस. ओके, देन अगर मेरे पास 1 मोल जितने हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो फिर उसका टोटल एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा वो हमको जो फाइंड करना है. यानी कि 1 मोल सारे के सारे प्लेस कर दो एज अ जितना कंप्रेसिव फॉर्म में हो सके उतना, बराबर. तो फिर उसके बाद उसका नेट वॉल्यूम क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर. Okay, so here before starting this theory you must know about the Avogadro numbers theory. Now what is the Avogadro number theory? Okay, so whenever you are considering the weight, otherwise the mass of your given element, okay, for example if you are taking sodium, so sodium atomic mass equal to 23 gram. So if you are taking 23 gram of sodium, then you are always found that the number of atoms of sodium in this 23 gram, okay, are always equal to the Avogadro number, that is 6.023 into 10 to 23. उसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो when you are taking the 16 gram oxygen, then you are again find out the same number of answer. यानी कि जिसका भी जो भी एटॉमिक मास होगा उतना वेट आप ग्राम में ले लो और फिर उसमें आप नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशंस करोगे तो आपको ये हर बार फिक्स वैल्यू ही मिलेगी, है ना, जबरदस्त थिंग अंदर, बराबर. सो here you have to first of all find out the volume of the single hydrogen. Okay, here radius is available and we consider the entire atom as a sphere. So what is the formula of volume of the sphere? That is 4/3 pi r cube. Now you know the radius, that is 0.5 Armstrong. Just place it here and find out the volume of the single hydrogen atom. Now what you have to do, the next step, you have to actually find out the volume of the 1 mole hydrogen. So for that you have to calculate what is the number of molecule in 1 mole. Okay, so in 1 mole that is nothing but 6.023 into 10 to 23 numbers of hydrogens are available. So this is the way become easier to us, that is that we are now having the total number of hydrogen and we are also know that what is the volume of single hydrogen. Just multiply these two things, then you will be get the volume, net volume of the 1 mole of the hydrogen atom. Yes or no? तो आपको फाइनली क्या करना है, एक हाइड्रोजन का जो आता है वो लिखो एंड देन यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद दी व्हाट नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो 1 मोल में थे, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्विवेलेंट टू द एवोगैड्रो नंबर. दोनों को मल्टीप्लाई करो तो फाइनली आपको उसमें आंसर क्या मिलता है, 3.1 इंटू 10 to minus 7 मीटर क्यूब मिलेगा अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल उसका भाई है, क्या बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज द 22.4 लीटर. जब भी प्रैक्टिकली चेक किया गया तो पता चला कि जो भी आइडियल गैस है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो और कुछ नहीं 22.4 लीटर है. इफ यू हैव टू कन्वर्ट लीटर इनटू द मीटर क्यूब, देन व्हाट यू हैव टू जस्ट राइट डाउन 22.4 एंड मल्टीप्लाई इट विद 10 to minus 3, then this answer we will say in terms of the what, meter cube. Okay, now you have to do what is the ratio of the molar volume to the atomic volume of the mole of the hydrogen, बराबर. तो आपको क्या करना है कि भैया आपका जो मोलिकुलर वॉल्यूम है उससे एटॉमिक वॉल्यूम को क्या करना है, डिवाइड करना है. एटॉमिक वॉल्यूम हमने ऑलरेडी आगे डिराइव कर लिया, वही की वही वैल्यू आपको लेनी है और यहाँ पे हमने 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. तो अब आपको दोनों का रेशियो लेना आएगा कि नहीं आएगा अंदर?
यस और नो? अगर आप ये दोनों का रेशियो लेते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 7.1 इंटू 10⁴ मिला है, यानी कि मोलर वॉल्यूम ऑलमोस्ट आपको 10⁴ टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे हमने रेशियो फाइंड कर लिया, और ये रेशियो का सिग्निफिकेंट हमको बताता क्या अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे हमको वॉल्यूम क्यों मिला, वॉल्यूम कब ज़्यादा मिलेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज दैट वेन एवर वी आर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द 1 मोल हाइड्रोजन एट द टाइम वी डज नॉट केयर अबाउट द व्हाट इज द एक्चुअल स्पेस बिटवीन द 2 molecule, we are assuming we are using the formula in a such a way that there is no gap between any atom to the any atom of the hydrogen, then and then you will say that okay the volume of the 1 mole hydrogen is equal to the 3.1 into 10⁻² जो आंसर आया था वो आएगा अंदर। बट मोलर वॉल्यूम क्या है भाई, जो गैस है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, और हमको पता है कि वेन एवर वी आर कंसिडरिंग गैसियस मॉलिक्यूल दे आर हैविंग देयर इज अ स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, तो वो सारी स्पेस डिस्टेंस यहाँ पे ऐड होगा, तो बट ऑफ से वॉल्यूम भी थोड़ा क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे इंक्रीज होते होते 1 मोल के लिए डिफरेंस कहाँ तक पहुँच जाता है, 10⁴ तक पहुँच जाता है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, यस और नो? चल नेक्स्ट चीज आपको क्वेश्चंस में 18 नंबर में क्या बोली गई है कि एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। हमको एक ऑब्जर्वेशन जो हमने किया ही होगा दैट वी हैव टू एक्सप्लेन क्लियरली। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं कि इफ यू लुक एट द विंडो ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन द नियरेस्ट ट्री हाउसेस एक्सेट्रा सीम टू बी मूव रैपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन मोशन, बट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक हिल टॉप्स मून स्टार्स एक्सेट्रा सीम टू बी स्टेशनरी, यानी कि वो लोग मूव करते हमको नहीं लग रहा है, बराबर। तो वो चीज़ को हमको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो हम उसको एक सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट से स्टडी करते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से एक पॉइंट्स ड्रॉ किया अंदर, 2 लाइन ड्रॉ की अंदर, सॉरी बराबर, 2 लाइन्स ड्रॉ की। अब आप एक पॉइंट यहाँ पे ले रहे हो और आर्क लेंथ इतनी ले रहे हो, दूसरा पॉइंट यहाँ ये आर्क लेंथ उसके हिसाब, तो रेडियस जैसे बढ़ती जाती है तो आप देख सकते हो आर्क लेंथ की वैल्यू भी बढ़ती जाती है अंदर। समझ में आ रहा है? जबकि ये सारे के सारे आर्क के लिए एंगल की वैल्यू तो सेम है अंदर। समझ में आ गया? बस यही चीज़ यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो ये आपकी ट्रेन है, बराबर, और आप यहाँ से विंडो से देख रहे हो, तो अगर ये यहाँ पे है तो उसको इतना आर्क लेंथ ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, कम ही लगेगा। पर जबकि ये वाला आर्क लेंथ होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये वाला तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको थोड़े फ्रैक्शन के लिए तो वो स्टेशनरी ही लगेगा ना अंदर। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ यहाँ पे वर्बल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने का ट्राई किया अंदर। तो क्या बोल रहे हैं कि लाइन जॉइनिंग द पर्सन एंड द ऑब्जेक्ट आउटसाइड ट्रेन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। सो व्हेन द पर्सन इज सिटिंग इन द मूविंग ट्रेन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, बराबर, डिरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइट चेंजेस रैपिडली, हेंस ऑब्जेक्ट सीन अपीयर टू मूव इन अ अपोजिट डिरेक्शन ऑफ द ट्रेन। तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो सटासट बदलेगी अंदर। क्यों? क्योंकि हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक नया ऑब्जेक्ट उसके सामने आ जाता है अंदर। समझ में आ रहा है? बट वेन द ऑब्जेक्ट विच आर वेरी फार डिरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ साइट चेंजेस वेरी स्लोली। तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट की डिरेक्शन वो स्लोली चेंज होती है अंदर, बराबर। इसलिए वो लोग थोड़े टाइम के लिए हमको क्या लगते हैं, जा रहे हैं स्टेशनरी, या तो फिर हमको ऐसा लगे कि हमारे साथ ही वो लोग भी आ रहे हैं अंदर। समझ में आ गया आपको इतना पार्ट? चल, and the last question of this video is that okay, in that method you have to use the parallax method. Okay, so what is the point here given? The principle of the parallax in the section is used to determine of the distance of very distant star. The baseline AB, that is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the sun, and that is the baseline is about the diameter of the earth orbit 3 into 10⁻11 मीटर। यानी कि यहाँ पे बोला क्या गया है, एक स्टार है, बराबर, और हमारी अर्थ है वो अपने जो भी एक्सिस है, एक्सिस नहीं सॉरी, उसकी जो रोटेशनल पाथ है जो सन की आसपास का है, वहाँ पे वो क्या होती है, मूव होती है अंदर, बराबर। तो जब 6 महीने की बात होती है तो अगर अर्थ एक टाइम पे यहाँ पे, तो 6 मंथ के बाद वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड के पॉइंट पे होगी कि नहीं होगी अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? और वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे कंसीडर करने के लिए बोला गया है कि भाई वो कितना है, 3 into 10⁻11 मीटर है अंदर। However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline, they shows the parallax only of the order of 1 second। यानी कि आज की डेट में हम नॉर्मली भी जो स्टार को नॉर्मली देख सकते हैं, और उसका एंगल अगर हम ये बेस लाइन के साथ भी करें,
हम अर्थ के 2 पॉइंट की बात नहीं कर रहे, अर्थ के 2 पोजीशन की बात, उसके साथ तो भी हार्डली कितना एंगल बनता है, 1 सेकंड का उनके साथ बनता है अंदर। समझ में आ रहा है इतना पार्ट, बराबर। तो क्या बोल रहे हैं कि एंड पार्सेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलैक्स ऑफ 1 सेकंड, बराबर, ऑफ एन आर्क फ्रॉम द अपोजिट एंड ऑफ द बेस लाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, विच मच इज अ पार्सेक इन टर्म्स ऑफ द मीटर। तो हमको आगे के पॉइंट में क्या था, पार्सेक क्या है वो हमने स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पे हमको क्या है, पार्सेक की वैल्यू लानी है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो भी आपका एंगल बनेगा वो रेफरेंस लाइन से बनेगा। तो हमारी रेफरेंस लाइन क्या होगी भाई, यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स को जोड़ती होगी कि नहीं होगी स्टार से अंदर, बराबर। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आपका एंगल कितना बने, थीटा, बराबर। पर आपको तो भाई पूरा देखना है 6 मंथ के लिए, तो आपको जो एंगल है वो क्या लेना, 2 थीटा, यानी कि 2 × 1 सेकंड। तो आपको टोटल एंगल क्या लेना पड़ेगा भाई, 2 सेकंड लेना पड़ेगा अंदर, बराबर। अब सीधी सी बात है, ये आपका क्या हुआ भाई, आर्क लेंथ हुआ, ये आपकी रेडियस हुई और आपके पास एंगल अवेलेबल है। तो आर्क लेंथ की फॉर्मूला जो स्मॉल बी है वो इक्वल टू क्या लिखते थे हम, रेडियस इंटू एंगल लिखते थे अंदर, यस और नो, बराबर। तो रेडियस हमारी क्या आएगी, अगर इसको हम कैपिटल डी बोलते हैं, बराबर, और एंगल आपका क्या आएगा, 2 थीटा आएगा। आपको यहाँ पे कैपिटल डी फाइन करना है, तो इक्वल टू क्या आएगा, बी डिवाइड बाई 2 थीटा। बी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, हाँ कि ना, 3.1 वाला, और 2 थीटा, तो आपको 2 सेकंड दी गई है, बराबर। उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस की थी अंदर, तो आपका काम हो गया कि ना हो गया। तो इस तरह से आप डिवीजन सिंपली करोगे तो आपको फाइनल आंसर्स क्या मिलेगा, 3.09 × 10⁻16 मिलेगा। और हमको पता है कि 1 पार्सेक इक्वल टू उसके जैसा ही आंसर था, इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 पार्सेक। समझ में आ गया इतना पार्ट, बराबर। तो आज के लिए हम इतने एग्जाम्पल देखते हैं, आने वाले वीडियो में हम और भी बाकी के एग्जाम्पल जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।